Hello everyone, I am Saurabh Pandey and welcome to all of you in my YouTube channel Saurabh Statistics. This is lecture 2 of electrostatics for class 12 students. प्रीवियस वीडियो में हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था और इंट्रोडक्शन था हमारा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे काइंड ऑफ चार्जेस की। चार्जेस में दो काइंड्स हैं, लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। इनका बिहेवियर किस तरह से होता है और हम इनको जनरेट किस तरह से कर सकते हैं। जैसा कि हमने जानते ही हैं, एज वी नो दैट कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ पीस ऑफ सिल्क और if we rub with our hair, dry hair, the glass rod gets the property of attracting some small objects like bits of paper or even dust particles also. So we say that the glass rod gets electrified. हम बोलते हैं कि जो हमारा ग्लास रॉड है वो इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज। जब हम ग्लास रॉड को अगर रब कर रहे हैं सिल्क से तो हम बस बोल रहे हैं कि ग्लास रॉड गेट्स प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। दैट मीन्स ग्लास रॉड गेट्स इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज। Similarly, when a plastic comb is passed through dry hairs, it also gets electrified or charged. मतलब electrified or charged is same thing. Or even we can take the example of metal bodies of car and truck also. They also get charged due to friction. Due to friction, they also get charged. Sometimes the charge can be so bigger that spark can also be produced. That can be very dangerous in case of petrol tank also. So we can say that there is a charge generated when two bodies or two insulated bodies are rubbed against each other or due to friction. Here, so when glass rod is rubbed with silk, glass rod acquires some kind of charge and another kind of charge is acquired by the silk. If there is repulsion between them, if there is a repulsion between them, then that is like charges. So like charges repel each other. Like charges means same charges means two positive charge or two negative charge. Like means same. So like charges repel each other and unlike charges attract each other. Unlike charges means one positive and one negative charge. Like charges means both positive or both negative charge. So when two like charges are there, there will be a repulsion. When two unlike charges are there, there will be a attraction. Here are some examples. A glass rod rubbed with silk brought closer to another glass rod that is having positively charged, there is a repulsion between them. We found that there is a repulsion between them. Means both are like charges, then there must be a repulsion. When two negative charges, ethanoid rod rubbed with a silk acquires the negative charge, so there is a repulsion between them. When a glass rod that is positive and negative charge that is ethanoid, there is an attraction between them. Means unlike charges, there is an attraction. Or two positively, this is pith balls, positively charged, there is a repulsion, and when there is positive and negative, there is a attraction. So there are two kind of charges, like charges and unlike charges. Like charges, property of like charges repel each other, and unlike charges attract each other. When we rub two bodies, both bodies acquire equal and opposite charge. This can be happen in any case, whether in the silk or glass, whether in glass or ethanoid rod or silk, glass or ethanoid rod, or we can take other example also like amber and cat's fur, these things. So we can say that when we rub two objects, they acquire equal and opposite charges, like in this case silk and glass rod. But when this glass rod that is rubbed with silk brought closer to another, there is a repulsion between them. So like charges, conclusion is that like charges repel each other and unlike charges attract each other.
तो इस केस में जो हमने बात किया वो हमारा है कि जब हम किसी दो बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में ला रहे हैं तो वहाँ पे चार्ज जनरेट हो रहे हैं और वो अलग अलग तरह से हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, अपोजिट हो सकते हैं। बट विदाउट कांटेक्ट, अगर कांटेक्ट में लाए बिना अगर हमें चार्ज करना है किसी बॉडी को तो हम किस तरीके से करेंगे, वो हमारा आता है केस चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, अगर कोई आपके पास एक चार्ज बॉडी है ए, मान लीजिए कोई आपके पास एक चार्ज बॉडी ए है, उसको आप किसी दूसरे बॉडी के पास लेकर के जा रहे हैं बी, तो वो इक्वल सेम चार्ज ऑफ अपोजिट साइन, मतलब इक्वल सेम चार्ज ऑफ अपोजिट साइन इम्पार्ट करेगा बॉडी डी पे विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट। तो इस केस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्ज बॉडी ए इम्पार्ट टू अनदर बॉडी बी सम चार्ज ऑफ अपोजिट साइन विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट। एक्चुअल कांटेक्ट के बिना अगर हम चार्ज कर रहे हैं किसी एक चार्ज बॉडी से दूसरी बॉडी को तो वो हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें हम दो केस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस हमारा है कि कोई एक हमारे पास दिस इज अ मेटालिक स्फीयर और ये हमारा जो स्टैंड है वो इंसुलेटिंग स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि इंसुलेटिंग स्टैंड पे आपके जो चार्जेस हैं वो मूव नहीं, इंसुलेटर पे क्या होता है कि चार्जेस मूव नहीं करते हैं। तो ये आपका एक मेटालिक स्फीयर है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है। फर्स्ट केस में फिगर बी को अगर देखें, जब इस मेटालिक स्फीयर के पास में हम ये ग्लास रॉड लेकर के आ रहे हैं, ग्लास रॉड यहाँ पे हमारा पॉजिटिवली चार्ज, ये ग्लास रॉड हमने लिया है इस मेटालिक स्फीयर के पास में, तो क्या होगा कि ये ग्लास रॉड ये मेटालिक स्फीयर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इनके इलेक्ट्रॉन्स को। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस मेटालिक स्फीयर पे प्रेजेंट होंगे वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा इस सरफेस में, जिस सरफेस पे आपने एक ग्लास रॉड लगाया है पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड और ये मेटालिक स्फीयर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, तो ये सरफेस जो है मेटालिक स्फीयर का वो आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये सरफेस आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये सरफेस जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया इस ग्लास रॉड की वजह से, क्योंकि ये ग्लास रॉड ने अट्रैक्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो इस मेटालिक सरफेस में फ्री प्रेजेंट है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज का वो इंस्टेंट होगा, काफ़ी इंस्टेंटेनियस होगा और ये स्टॉप कब होगा, जब यहाँ पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स पे। हम फिगर्स अब आगे चलते हैं। ये वाला सरफेस हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया और इस सरफेस को अगर हम ग्राउंड कर दे रहे हैं, अगर हम इस मेटालिक स्फीयर को ग्राउंड कर रहे हैं, मेटालिक स्फीयर को ग्राउंड करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकलेंगे और ये पॉजिटिवली चार्ज जो हमारे पास सरफेस है या फिर जो मेटल में जो पॉजिटिव चार्ज है उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। या हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज जो है वो अर्थ में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो नेगेटिवली चार्ज है वो तो अर्थ में न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्लास रॉड का जो पॉजिटिव चार्ज है और इसके बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये यहीं पे रहेगा और पॉजिटिवली चार्ज जो है वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब इस मेटालिक स्फीयर के पास ओनली नेगेटिवली चार्ज बचे जो कि अट्रैक्टेड हैं ग्लास रॉड के पॉजिटिव चार्ज से, इनके बीच में फोर्स है जिसकी वजह से ये दोनों आपस में बॉन्ड है, पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड और नेगेटिव चार्ज ऑफ मेटालिक स्फीयर। लास्ट केस में आपने क्या किया कि अब आपने ग्लास रॉड को रिमूव कर दिया। जब आपने ग्लास रॉड को रिमूव कर दिया तो क्या होगा कि अब तो कोई भी ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जो उस इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड रखेगा अपने पास। तो क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये पूरे मेटालिक सरफेस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स बाउंड नहीं रखेगा। तो पहले आपके पास फर्स्ट केस में जो आपका मेटालिक स्फीयर है वो अनचार्ज है, लेकिन आपने विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट क्या किया, इसको नेगेटिवली चार्ज स्फीयर बना दिया। इसको क्या कन्वर्ट कर लिया, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर में। ये हमारा है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें हम
without any actual contact we can charge the metallic sphere or some other body. यहाँ पे हमने पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड यूज किया। जब हमने पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड यूज किया तो यहाँ पे जो मेटेलिक सरफेस मिला, मेटेलिक बॉडी जो हमारी है वो नेगेटिवली चार्ज मिली। अगर यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज ग्लास रॉड यूज करते या फिर नेगेटिवली चार्ज कुछ भी ग्लास रॉड या इग्नोइड रॉड जिससे भी हमें चार्ज करना है वो यूज करते तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि चार्ज टू स्फीयर बाय इंडक्शन। ये तो हम एक स्फीयर की बात कर रहे थे, एक स्फीयर को हम चार्ज कर रहे हैं बाय इंडक्शन। अब हम देखते हैं कि दो स्फीयर्स को हम इंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे। ये हमारे पास दो स्फीयर है ए और बी। फर्स्ट केस फिगर ए, दो स्फीयर हमारे पास है, यहाँ पे फिर ये इंसुलेटिंग स्टैंड। अब हम क्या करते हैं कि इन स्फीयर के पास वही पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास ग्लास रॉड है, उसको उसके पास लेकर के आएंगे। तो क्या होगा, दोनों सरफेस, दोनों स्फीयर जो है हमारे पास उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटालिक स्फीयर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेफ्ट सरफेस ऑफ स्फीयर ए, जो हमारे पास ए मेटालिक स्फीयर है उसकी सरफेस ए पे नेगेटिवली चार्ज एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो राइट सरफेस है फिगर राइट सरफेस है स्फीयर बी का वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसा ही नहीं होगा कि दोनों स्फीयर्स में जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आकर के एक्यूमुलेट हो जाए फिगर स्फीयर ए के लेफ्ट साइड में। ऐसा नहीं होगा कि दोनों स्फीयर्स के नेगेटिवली चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए आपके स्फीयर ए के लेफ्ट सरफेस पे। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे ही एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगा जिससे नेगेटिवली चार्ज इस सरफेस पे आने स्टार्ट हो गए स्फीयर ए के, लेकिन और जब स्फीयर बी से जब और भी नेगेटिव चार्ज जब आएंगे तो इन दोनों नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इंस्टेंटेनियस, ये जो हमारा फिगर बी है ये शो कर रहा है हमारा इक्विलिब्रियम को, जिसमें दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बैलेंस हो गए। अब इस केस में क्या होगा, ये सरफेस आपका नेगेटिवली चार्ज और ये सरफेस आपका पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये दोनों सर अपोजिट चार्ज स्फीयर हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बट ग्लास रॉड है तो ये हेल्ड करेगा एक दूसरे को, जिससे कि ये नेगेटिवली चार्ज और ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड आपस में बाउंडेड रहेंगे। नेक्स्ट केस में आपने ग्लास रॉड रिमूव कर लिया और ये आपका ये नेगेटिव, जब आपने ग्लास रॉड रिमूव किया तो यहाँ पे जो स्फीयर ए पे जो नेगेटिव चार्ज हैं वो बाउंडेड थे ग्लास रॉड के पॉजिटिव चार्ज से, बट आपने रिमूव कर लिया और ये दोनों स्फीयर सब क्या है, अपोजिट चार्जेस हैं। एक स्फीयर के पास नेगेटिव चार्ज है एक्सेस में और दूसरे स्फीयर के पास एक्सेस में पॉजिटिव चार्ज है। तो ग्लास रॉड रिमूव कर लिए हम तो क्या होगा कि हमने एक्सटर्नल जो फोर्स था उसको हटा लिया, तो ये स्फीयर के जो नेगेटिव चार्ज हैं वो दूसरे स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों स्फीयर्स अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज होने की वजह से दोनों में अट्रैक्शन होगा, मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम कर सकते हैं। जब आप इसको दूर कर लेंगे, मतलब दोनों स्फीयर्स को अपोजिट कर लेंगे तो ये रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब स्फीयर ये आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और स्फीयर भी आपका पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि दो चार्ज को, दो मेटेलिक स्फीयर को इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं इस तरीके से। एक मेटेलिक स्फीयर को सिंपली हम इस तरीके से चार्ज करते हैं बाय इंडक्शन। तो ये था हमारा टोटल काइंड ऑफ चार्जेस और चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके बाद हम लेक्चर 3 स्टार्ट करें, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है, देन फर्दर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और भी जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आई होप आपको ये टोटल क्लियर है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।